السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بزرگان دین کو غریب نواز کہنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے، اور غیبی مدد مانگنا بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے غیبی مدد طلب کرنا، اس کے کیا معاملات ہیں۔ جیسے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ غیبی مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کسی سے غیبی مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور اسباب کے تحت تو مدد مانگی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں کسی دکان والے کے پاس جا کے کہوں کہ مجھے 1 کلو چینی دے دو، تو مطلب یہ اسباب کے تحت، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں لوٹا دوں گا، تو یہ اسباب کے تحت مانگ رہا ہوں۔ میں غیبی مدد نہیں مانگ رہا کہ دکان والے، میں گھر پہ بیٹھا ہوں، اے دکان والے میرے گھر پہ چینی پہنچا دے، یہ ہو گئی غیبی مدد۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ شرک پہ مبنی ہو گئی کہ میں ڈائریکٹ اس سے مدد مانگ رہا ہوں، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میری بات کو سنے گا اور مجھ تک اس چیز کو پہنچا دے گا، تو یہ ہو گئی غیبی مدد۔ یہ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جیسے کہ خواجہ غریب نواز، یہ ان سے مدد مانگنا، ان کو غریب نواز کہنا، اس کے کیا معاملات ہیں، چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے الیاس قادری صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خلاصہ ہے؟ غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ غریبی نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں۔ غریب نواز نے غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اپنے اداروں کے لیے کہ غریب طلباء کی امداد کیجیے۔ بکری دانے تو جو غریب نواز کہنے کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے بھی اداروں کے آپ کو پوسٹر ملیں گے کہ فلاں ادارے کے نادار طلباء کی چرم قربانی کے ذریعے امداد کیجیے، پھر یہ کہ چندے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے سر؟ یہ غریب نوازی تو ہے، غریب کی مدد کرنا، غریبوں کو نوازنا۔ تو اب اس میں خالی اولیاء کرام سے ہی مسئلہ ہے یار، عوام سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی خیراتی اسپتالیں کہلاتی ہیں، چیریٹی، سارے تو غریبوں کو نواز رہے ہوتے ہیں یار، فری علاج کرتے ہیں، آدھے چارج میں علاج کرتے ہیں۔ یہ جو مطلب جتنے سیلاب زدگان کی امداد کی، تو کیا یہ غریب نوازی نہیں ہے نا؟ تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو؟ ہم خود غریب نواز ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ یار کیسی بات ہے؟ تو غریب نواز کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی دیتا ہے اللہ کے دیے سے دیتا ہے۔ مالدار بھی پیسے دیتا ہے، اللہ کے دیے سے دیتا ہے۔ اللہ پیسے بھی دیتا ہے اور دل میں بھی ڈالتا ہے کہ تو دے، ورنہ نہیں دے گا، اور سب دیتے بھی نہیں ہے۔ تو جس کا خوش نصیب پیسہ ہوتا ہے نا، وہی غریبوں کے مدد میں کام آتا ہے، باقی کام میں نہیں آتا۔ تو غریب نواز کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غریب کی مدد کرنا اللہ پاک کی ہی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک تو ہماری طرح کوئی چندے تھوڑی بانٹتا ہے، ہماری تو جیبوں سے اللہ پاک بھرتا ہے ہماری جیب میں، پھر ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم جیب میں آتا ہے کسی کو دیتے ہیں، ہمارا تو کمال ہے بھی کیا اس میں۔ دوسری بات ہے، تو دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ کو بھی تو آپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ٹرسٹ بھی تو چندہ مانگتے لوگوں کو جو ہے پہنچاتا ہے، مطلب وہ غریب کی مدد کرتے ہیں، مطلب ٹرسٹ بھی تو اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، لیکن ٹرسٹ جو ہے اسباب کے تحت کر رہا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہا ہے اور غریبوں تک پہنچا رہا ہے، یہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے کام۔ لیکن آپ جو ہے غیبی مدد مانگ رہے ہیں بزرگان دین سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب نواز ہیں، مطلب غریبوں کو نوازتے ہیں، وہ آپ ان کے پاس جائیں غیبی مدد مانگیں، مطلب یہ تو ڈائریکٹ شرک ہو گیا نا۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اللاجیکل بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، ان کا موقف لیتے ہیں۔ یہ دونوں کی انالوجی بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں، تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔
अगर कहीं वो अपनी जिंदगी में थे वो बिल्कुल ठीक है, मरने के बाद आपकी और हमारी कोई उस एतबार से उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है। अब वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं, हम उनके लिए दुआएं करेंगे और वो किसी को कुछ नहीं देंगे, अल्लाह ही से आपने मांगना है। और इसको सपोर्टिव मैं एक ही आयत पढ़ूंगा, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे घंटों बोल सकता हूँ। सूरतुल मायदा की जो आयत नंबर 75 है ना, वो बड़ी डिसाइसिव है इस कॉन्टेक्स्ट में। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ एक सच्ची औरत थी। कान याकुलान अत्ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। अंजुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखो तो सही हम किस तरह अपनी आयात खोलकर बयान करते हैं। सुम्मा अंजुर अन्ना युफकून, फिर इनकी भी तरफ देखो, यानी ये जो नसारा है, क्रिश्चियंस, किस तरफ औंधे मुंह जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी से फरमाओ क्या तुम अल्लाह को छोड़ के इनकी इबादत कर रहे हो, ईसा और उनकी मां की। मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना किसी नफे के। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला, इल्म वाला है। अल्लाह ताला कह रहा है कि उलुल अज़म पैगंबर ईसा और उनकी मां, एक बेहतरीन पैगंबर और अफजल तरीन वलिया उनकी मां, दोनों तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं है। तो फिर ये बाकी लोग कहां से हो गए? और अल्लाह ने कहा दोनों रोटी खाने के मोहताज थे, वो खुद मोहताज थे रोटी के। और दूसरे ने कहा, इनको कहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। ये कहते हैं मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत होते हैं, नहीं, जो भी अल्लाह के मुकाबले पे आप खड़ा करेंगे उस बंदे का, उस आला हस्ती का तो कसूर नहीं है, लेकिन वो मिन दूनिल्लाह बन जाएगा। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, अब तारिक मुर्शद साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और आगे भी दोबारा मौक़िफ़ पेश करेंगे। आपको सारी सिचुएशन सारी जमा करके एक जगह बता दी जाएगी कुरान और हदीस की रोशनी में कि क्या दलाइल हैं इसके ऊपर। देखें, ये बुज़ुर्गों की क़ब्र पे जाना सिर्फ़ आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए या मैयत के लिए दुआ करने के लिए, इस नीयत से जाना जायज़ है, इसके अलावा किसी भी नीयत से जाना जायज़ नहीं। आजकल जो ये मज़ार बने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इनमें बहुत सारी खुराफात होती हैं, इसलिए इन मज़ारों पे जाने को हम नाजायज़ ही कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इससे बिदतियों की तायद होती है, और जो कुछ धूम धड़क्का वहाँ पे हो रहा है सबको पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, वो अंबिया के दुनिया से जाने के बाद उनकी खबरों को मेला गाह बना लिया करते थे, ईदगाह, जैसे ईद पे मेले ठेले होते हैं। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरी क़ब्र को अल्लाह इससे मेरी हिफाजत फरमाए। तो क़ब्र पे मेले ठेले और इस तरह का क्राउड जो है ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो और जितने भी बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्ग हैं, बहुत सारे जो सूफिया कराम थे, और उनकी क़ब्रों का बड़ा बुरा हशर किया हुआ है बिदतियों ने। तो इस तरह आज बहरहाल इस अमल से मना किया जाएगा। आप अपने घर में बैठें और किसी बुजुर्ग के लिए दुआ करनी हो वहीं बैठ के कर लें। हाँ, जिस बुजुर्ग की क़ब्र पे ये सब कुछ ना होता हो तो महज क़ब्र की ज़ियारत के लिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए हम जाते हैं, ऐसे किसी बुजुर्ग की क़ब्र की ज़ियारत के लिए भी, यानी ज़ियारत बराए ज़ियारत हो तो जाया जा सकता है। सो दोस्तों, आपने तारिक मुर्शद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मज़ारात पे जो है ना हुजूम जमा नहीं करना चाहिए, मेला वेला नहीं लगाना चाहिए और इससे बचना चाहिए। और अगर कोई दुआ देना चाहता है तो कहीं से भी बैठ के बुज़ुर्गान दीन को दुआ कर सकता है उनके लिए। तो ये मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको दिखाऊँगा शिरकी अल्फाज किस तरह के जो है यूज़ किए जाते हैं और किस तरह गैबी मदद मांगी जाती है जो कि अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो देखें आयत के, उसके बाद आयत का तर्जुमा और आयत सब चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैंने वीडियो पूरा पैकेज बना के आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए और हक बात तक आप बआसानी पहुँच सकें। शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। हो सफर मोइनुद्दीन रात अगर गुलामी की लाज रखी मालिक, हुजूर बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ है तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, ना फिक्र मैं ना गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, तेरे गदा है गुनहगार और मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। मौला हसनैन करीमैन के सदक़े में सबकी दुआ इल्तिजा कबूल फरमाइए, सबकी दरख्वास्त को मौला कबूल फरमाइए।
फरमाइए, तमाम चाहने वालों को सलामत रखिए। मौला ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा के रखिए। आपके दामन के साए में, आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए मौला। मौला गरीब नवाज, ये जो वबा, ये बला बीमारी जो फैली हुई है, इस वबा को, इस बला बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। हमने बरसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा, इस तवक्को पे कि तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। तुम ही हो मालिको मुख्तार या गरीब नवाज, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और झोलियां हम सब की आपके सिवा कौन भरेगा। मौला जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए। मौला जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वाली औलाद अता फरमाइए। मौला जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं मौला, उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। बच्चे बच्चियों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए। ईमान की सलामती अता फरमाइए। सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाइए। गैब से मदद फरमाइए हुजूर। तो जो भी लोग गरीब नवाज के चाहने वाले ईद के मौके पे अपनी तरफ से बारगाह गरीब नवाज में ईद का तोहफा पेश करना चाहते हैं तो वो आज और कल के आज शाम तक बता दें। अगर आज चांद हो गया तो कल सुबह हम पेश कर देंगे आपकी तरफ से तोहफा। Wait a minute. Who are you? तुम्ही हो मालिको मुख्तार या गरीब नवाज, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और झोलियां हम सब की आपके सिवा कौन भरेगा। और हमारे को तो ऐसी उम्मीद है कि वैसे कल चांद होगा और परसों ईद होगी, तो इंशाअल्लाह जो भी आपको तोहफा पेश करना है वो ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में आपके तोहफे को पेश करेंगे। सो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और किस तरह के अकायद पे मबनी ये वीडियो थी, किस तरह के इनके अल्फाज थे जो कि हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। वो उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इतनी सारी दुआएं इनसे डायरेक्ट मांगी और गैबी मदद भी तलब कर ली। तो इस तरह अगर ये शिरक नहीं है तो फिर शिरक क्या है। तो इसके ऊपर इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं और ये वाज़े तौर पर आपके सामने आयतें रखेंगे, उसके तर्जुमा रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये तो अब बड़ी क्रिटिकल है। अल्लाह के साथ किसी और को दुआ के लिए नहीं पुकारते वो लोग, ये उनकी निशानी है। यहां इबादत का जिक्र नहीं आया, दुआ, क्योंकि अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा शिर्क की दुआ में होना है। अल्लाह के साथ किसी और भी इलाह को दुआ के लिए नहीं पुकारते। अल्लाह अकबर। और ये पहली कमांड है 10 कमांडमेंट्स में, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सवाए उसके। ये पहली कमांड है तौहीद। डिटेल किसी को चाहिए हो तो मसला नंबर 3 है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मेरा लेक्चर ahlesunnatpak.com पर, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43 तवस्सुल और वसीला के सही अहकाम व मसाइल। लेकिन यहां पर मैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर कुछ आयात इस मजमून के साथ इंसाफ करते हुए जरूर बयान करूंगा। सूरतुन नमल की आयत नंबर 62 है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा, बताओ कौन है वो जो मुश्किल में घिरे हुए, इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुन लेता है। वह यक्शिफु सू, और उससे उसकी बुराई दूर कर देता है। वह यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और वो तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। तुम्हारे बाप दादा मरते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की तकलीफ को दूर करते हैं? तो इसमें आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े कहा कि जिसको मुश्किल और परेशानी में मदद के लिए पुकारा जाए वो इलाह है। तो भाइयों, ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को इख्तियार हो तब भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार हो तब भी, गैब में मदद के लिए उनको पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत है, और इबादत अल्लाह ताला के साथ खास है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गैब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। ज़ाहिर इस बाब में तो आप पुकार सकते हैं, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन बारिश हम फरिश्तों से मांगेंगे? फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है,
मेरा सलाम पहुंचा दो कि खादम तुम्हारा करीब आ रहा है। फरिश्तों को हम पुकार ही नहीं सकते, हम अल्लाह को पुकारेंगे। चाहे दुरूद होगा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, दुआ होगी तो अल्लाह ही को पुकारेंगे। यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कितना अच्छा बेहतरीन मौक़िफ़ आपके सामने रखा, कुरान की आयत रखी, सारी चीज़ें आपको वाज़े कर दी कि तौहीद क्या है असल में, और दुआ जो है सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी है और किसी से नहीं मांगनी। एक और वीडियो की तरफ आपको लेके चलते हैं, शिर्क के अल्फाज जो बोले गए हैं सुनाते हैं आपको, फिर उसके ऊपर कुरान की आयतें और उसका तर्जुमा सुनाएंगे आपको, तो वाज़े क्लियर हो जाएगी कि तौहीद क्या है और किसी बुजुर्गान दीन से डायरेक्ट कहीं भी मदद मांगना किस तरह है, वो शिर्क ही है, डायरेक्ट आपके सामने वाज़े हो जाएगा। उनको रोजगार अता फरमाइए, मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं छोटा सा, उसके बाद वीडियो इख्तिताम हो जाएगी। तो ये छोटा सा मौक़िफ़ ले लें, इसमें भी आयतें हैं, उसका तर्जुमा है और आपके सामने साफ़ अल्फाज, आयत नंबर वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। खुद आप जाके कुरान शरीफ खोलें और चेक करें और तर्जुमा चेक करें, खुद ही आपको नॉलेज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को, दुआ को सुनता है। व यक्शिफुस सू, और उससे उसकी बुराई को, तकलीफ को दूर कर देता है। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है जमीन पे अगलों का, यानी तुम्हारे माँ बाप मरते हैं तो तुम खलीफा बनते हो, तुम मरोगे तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटी हो कि वो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुने और उसकी तकलीफ को दूर करे। कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत तो बहुत कम ही तुम हासिल करते हो। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसमें फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और हस्ती के बारे में तुम्हारा अकीदा है ना कि वो तुम्हारी तकलीफ दूर करती है और दुआ को सुनती है, तो गोया वो इलाह है तुम्हारा दूसरा, जाली इलाह तुमने बनाया है। चाहे कोई पैगंबर हो, फरिश्ता हो, जिन हो, बुजुर्ग हो, ये बाबा हो, वो गोया आपने इलाह बना दिया। मैंने कहा बताएं, ये मैंने तर्जुमा ठीक किया। माशाल्लाह उनको फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, उर्दू भी। बेसिकली वो इंडियन कश्मीर के रहने वाले थे। तो कहते हैं जी ये तर्जुमा तो आपका ठीक है, लेकिन मैंने कहा लेकिन नहीं, आप वाम से फैसला करवाते हैं। लेकिन तो अब खत्म हो गया ना, आयत के बाद जब एक वाज़े बय्यनात में से कोई चीज आ जाए, वहां जितने बैठे थे उनका जी ये सब आपकी बात जो है ना 100% ठीक है, इसमें बिल्कुल वाज़े मौजूद है कि आपने किसी और को नहीं पुकारना। तो अगर कोई कहता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद नाउज़ बिल्लाह, तो वो गोया हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को इलाह मान रहा है, कुरान ये कह रहा है। हाँ, अल मदद के बगैर कहता रहे क़यामत तक कहता रहे, कोई नहीं सुन। सो दोस्तों, सारी चीज़ें आपके सामने मैंने पेश कर दी हैं। उलमा कराम का मौक़िफ़ भी रख दिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी रख दिया, तारिक मसूद साहब का भी रख दिया, इलियास कादरी साहब का भी रख दिया, और वाज़े तौर पर आयतें आपके सामने पेश हो चुकी हैं। आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं, तर्जुमा पढ़ सकते हैं। गैबी मदद हम किसी से नहीं मांग सकते अल्लाह के सिवा, सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी है। तौहीद यही है कि सिर्फ़ अल्लाह को पुकारना है, मुश्किल में, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर वक्त अल्लाह को ही पुकारना है आपने। और गैबी मदद जब भी मांगनी है अल्लाह से ही मांगनी है। असबाब के तहत आप मदद मांग सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बता दिया था, उसी तरीके से। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदक़े जारी में शामिल हो जाएं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।
خدا جس نے کی